Hello and welcome to Career Talk by Shubham Pathak. And today in this lecture, we will continue that electronic carrier concentration. And in the previous lecture, we have talked about the whole concept. What is whole concept, right? And what is free electron? What is free electron, right? And how doping creates a whole concept, right? So in a semiconductor, we have studied about doping, in which let's say we have already considered in a silicon semiconductor. If we replace it with a fifth group atom like arsenic, or a third group atom which like gallium, then they create a hole and simultaneously an electron, right? A free electron or a free hole. So now secondly in this lecture, we will see what is the effective mass. What is the effective mass, right? The effective mass concept we will see. So mass of a free electron is not same as a mass in vacuum, ठीक है? Mass of free electron की बात कर रहा हूँ, मतलब free electron is not equal to mass of electron in vacuum, right? ऐसा क्यों होता है? Why it is so? It is because in crystal, right, movement of mass is restricted by other particles. Movement of mass is restricted by other particles, right? ठीक है, तो ऐसा किस वजह से? बिकॉज ड्यू टू फोर्सेस. सी, अगर कोई क्रिस्टल में आपका कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी फ्री फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम, बट अब क्योंकि वो अपने चारों तरफ उसके और भी पार्टिकल्स हैं, और भी एटम्स हैं, तो उनसे वो उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है? तो उसकी वजह से उसके ऊपर देयर विल बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ फोर्सेस जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, राइट? So because of these forces, it is not completely free movement, but when electron is in vacuum, there will be no force at all, and electron is free to move anywhere with any speed. No, I'm sorry, not with any speed, with whatever speed it has, right? It has no restriction in flowing, right? There, for example, if I use an analogy, if you go by a car, so there will be maybe no force with you, but there always be a air drag which is restricting your movement. But if you go in the vacuum, your car once started can go on forever without any restriction, because there will be no force to restrict your movement, right? It is same as that, because in a car there will be air, right? And air is also can be considered as some of the particle, as a sort of particle which is exerting force on the movement of the car. Okay, so what is effective mass? Effective mass is equals to constant into m naught. अब m naught क्या है आपका? m naught आपका वो मास है जो कि किसी भी पार्टिकल का वैक्यूम में होगा, ठीक है? तो लेकिन एक कांस्टेंट फिर क्या काम कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से है कि मान लीजिए मेरा m naught, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैक्यूम में जो मास पजेस करता है, दैट इज m naught, ठीक है? लेकिन वही इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल के, किसी क्रिस्टल के अंदर मास कुछ और पजेस करता है, लेट्स से इट इज me, राइट? तो me विल बी लेस देन m naught, ठीक है? तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को फ्री मूवमेंट देना है, राइट, तो विद दैट मास इट इज फ्री, राइट? बट द पार्टिकल विद मास m naught is not free inside the crystal, right? This is the particle of the mass which
in which particle is moving freely with this mass in vacuum. But same particle in a crystal, if we want that particle to be free in that crystal, its mass actually reduces. So it is constant into m naught, right? It is constant into m naught. निश्चित रूप से अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in intrinsic semiconductor, your number of electrons and number of holes is equal, right? Because they generate in pairs, generate and recombine in pairs. कैसे होता है ये? How it is occurred when a certain amount of energy which is sufficient to break a silicon bond, then as soon as bond is broken there will be a generation of electron as well as holes. But when that electron combines with that hole, then again it forms a bond with that silicon, right? So they always generate and recombine in pairs. But remember, this is for intrinsic semiconductor, not for extrinsic semiconductor. Okay, so at 3, let's say I already told you in the previous class that thermal energy is equals to kT, where K is Boltzmann constant and T is temperature in Kelvin. ठीक है, Kelvin. Okay, temperature is in Kelvin, it is Boltzmann constant. So on an average at T is equals to 300 Kelvin, energy is equals to 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आपको इसको चेक करना है तो आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू डाल दीजिए, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अगर आप इसको इसके स्टैंडर्ड यूनिट में डालेंगे तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी जूल में, और उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन is subjected to a voltage of 1 volt, then energy possessed by it is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो देखिए सिलिकन का जो बॉन्ड का एनर्जी होता है, सिलिकन बॉन्ड एनर्जी, दैट इज नियरली 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. अब देखिए अगर इसका सिलिकन का बॉन्ड एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपका जो थर्मल एनर्जी है दैट इज 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो आपको कितना पार्टिकल चाहिए एक बॉन्ड पर कन्वर्ज होने के लिए? आपको कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू ब्रेक दैट बॉन्ड, राइट? इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. लेकिन आपका जो एक पार्टिकल है उसका 300 केल्विन पर जो एवरेज एनर्जी है वो 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो इसको बॉन्ड को इस बॉन्ड एनर्जी को की रिक्वायरमेंट कितने पार्टिकल से पूरी हो सकती है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा आपका 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस नंबर इज नियरली इक्वल टू 42, राइट. सो सी नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल मस्ट नीड टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बॉन्ड, राइट, सिलिकन बॉन्ड. सो आपको यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी इम्पार्ट करना पड़ेगा. सफिशिएंट एनर्जी शुड बी इम्पार्टेड सो दैट कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए. अब वो एनर्जी कैसे इम्पार्ट होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पहले एक पार्टिकल भेज दिया, उसने 0.026 इम्पार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा भेज दिया, राइट, फिर आपने तीसरा भेज दिया. तो इस तरह से तो ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा. व्हाट इज रिक्वायरमेंट? रिक्वायर्ड इज नीड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीड टू कन्वर्ज. Particles need to converge
at a point, right, to break one silicon silicon bond, one silicon silicon bond, and that number is 42. अब देखिए, अब 42 पार्टिकल्स मस्ट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वेरी लेस. सो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, convergence probability is very less, right? क्योंकि अब एक पार्टिकल आ सकता है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें 42 पार्टिकल 42 पार्टिकल्स एक साथ उस सिलिकॉन बॉन्ड पे चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. सो आई वुड से लेट्स से द प्रोबेबिलिटी द पार्टिकल विल कोलाइड एटम इज p. ठीक है, पार्टिकल जो है वो एटम के साथ कोलाइड करेगा. पार्टिकल कोलाइड विद एटम हैज प्रोबेबिलिटी p. प्रोबेबिलिटी स्मॉल p. ठीक है, अब एक पार्टिकल के कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो p है, तो मुझे 42 पार्टिकल्स की जो है कोलाइड करने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक पार्टिकल कोलाइड करे एंड सेकेंड पार्टिकल भी कोलाइड करे एंड थर्ड पार्टिकल भी कोलाइड करे एंड सो ऑन अप टू 42. तो कितना बन जाएगा, p रेज़ पावर 42. सो p रेज़ पावर 42 इज दैट प्रोबेबिलिटी to generate electron hole pair by breaking the silicon silicon bond. ठीक है, क्योंकि जो आपका पार्टिकल है उसका जो कोलिजन है दैट इज प्योरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट है तो जिसकी वजह से एक पार्टिकल कोलाइड करेगा तो दूसरा करेगा या नहीं करेगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है पहले पार्टिकल के कोलिजन से. ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल में क्रिस्टल at T is equals to 300 Kelvin. ठीक है, जो आपका Ni है यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. लेकिन जो सिलिकॉन एटम का नंबर है, सिलिकॉन एटम यानी कितने एटम्स होंगे उसमें, किसमें, जो सिलिकॉन एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके होते हैं वो होते हैं 5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है इतने, कितने से जनरेट हुए हैं, इतने एटम से जनरेट हुए हैं, कितने, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर generation, electron hole pair generation is 10⁻10 divided by 5 × 10⁻22. So that is equals to 1 divided by 5 × 10⁻12. So electron hole pair के generate होने की probability ये हो गई 1 divided by 5 × 10⁻12. This is simple probability that you must have studied in your class 11th and 12th. ठीक है, कि भैया टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल क्या है कि सारे के सारे एटम से सारे बॉन्ड टूट जाएं, लेकिन जो फेवरेबल आउटकम है वो कि जो एक्चुअली हुआ, और एक्चुअली क्या हुआ कि जो 10⁻10 एटम्स थे पर सेंटीमीटर क्यूब में उनसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है और आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जनरेट हुआ है. तो ये प्रोबेबिलिटी आई आपकी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की. लेकिन हमने ऊपर देखा है अभी कि जो जनरेशन की प्रोबेबिलिटी है एक बॉन्ड की वो ये है p⁻42. तो असल में जो p⁻42 की वैल्यू है वो ये हो गई p⁻42, जो कि क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और हमने भी यहाँ पर यही निकाला है, दैट इज इक्वल टू 1 divided by 5 × 10⁻12. सो इससे हमें क्या पता चल गया कि p इज एक्सट्रीमली स्मॉल. p इज, ये मैं मस्ट नोट दिस, p इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल.
अब देखिए, अब मान लो कंसंट्रेशन हम देखें, कंसंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 400 केल्विन। ये अभी हमने एनालिसिस कब किस टेम्परेचर की करी है, दैट इज 300 केल्विन। सो देखिए E एट 300 इज इक्वल टू के टी विच इज 300 राइट, और 400 केल्विन पर यानी 400 केल्विन पर जो एनर्जी होगा पार्टिकल का, दैट इज टी विच इज 400 राइट। इट आई एम जस्ट यूजिंग इट अ सबस्क्रिप्ट। सो देखिए E 400 की वैल्यू आपकी क्या आई, ये आई आपकी E 300 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 300। कैसे किया, इन दोनों को आपस में, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है 0.026, तो 0.026 इंटू 0 से 0 कैंसिल्ड, इट इज़ 4/3 विच इज़ 0.026 into 4/3 right. So you can calculate it. It is 4 6 are 24, 4 2 are 8 9 10 0 1 1 0.104 divided by 3. Okay, so number of particles now number of particles need to converge at a point, right? Number of particles need to converge एट अ पॉइंट। कितना हो जाएगा, देखिए आपका जो सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी है वो तो अभी भी वही है, ठीक है। तो सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी आपका कितना है 1.12 डिवाइड बाई इट इज़ 0.104 इंटू 3, इट्स वैल्यू इज़ नियर, मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से, इट इज़ नियरली इक्वल टू 31.5 विच इज़ नियरली इक्वल टू 32। तो अगर 32 पार्टिकल आ जाएं एक जगह पर, कन्वर्ज हो जाएं, तो मेरा सिलिकॉन बॉन्ड टूट जाएगा। तो इससे आपने देखिए क्या क्या पता चला आपको कि अब जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, एक पार्टिकल के कन्वर्ज होने की हमें पता है P है, तो बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P⁻32। पहले कितनी थी, पहले थी P⁻42। तो देखिए कितना कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो कंसंट्रेशन है that increases rapidly with increasing temperature। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई उसकी, तो इसका मतलब अब ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। तो इसका जाहिर सी बात है निश्चित रूप से कि जब इसको क्वांटिफाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होंगे वो ज़्यादा जनरेट होंगे 400 केल्विन पर। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत तेज बढ़ता है। उसका कैसे बढ़ता है, अब यूजुअली लोग कहते हैं बॉन्ड टूटेगा ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर हम क्वांटिफाई तरीके से, अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से देखना चाहें कि किस तरीके से बढ़ रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न एंड विच आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो अब देखिए कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका हम मैथमेटिकली इसको बना करके देखते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन है Ni। अब Ni कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, मान लीजिए N, ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया, यानी एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन बोलूँ मैं इसको, एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इस एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो आपको पता चल जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है। बाकी देखिए आपको पता ही होगा ये तो कि ये जो वैल्यू है जो हमने P⁻42 जो निकाला था या P⁻32 निकाला है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो Ni इज इक्वल टू ये आएगा P⁻42 या जो भी। तो देखिए इसको अगर मैं मैथमेटिकली अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें आएगा आपका कि Ni इज इक्वल टू N एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन इंटू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी आएगी P की पावर कितनी आ रही थी यहाँ पर, यहाँ पे हमने जो ये यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेगा कि जो भी एनर्जी होगा किसका, बॉन्ड का जो भी एनर्जी है
उसका डिवाइड करेंगे आप किससे, पार्टिकल की एनर्जी से। और पार्टिकल का एनर्जी कितना है, kT। ये क्या है आपका बॉन्ड एनर्जी, ये आपका बॉन्ड का एनर्जी है, और ये आपका पार्टिकल का एनर्जी यानी एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, Ni की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N इंटू 1/P की पावर माइनस E/kT। इट इज एज सिंपल एज मैथमेटिक्स। सिंपल, आप अगर P की पावर E/kT है तो अगर आप इसको 1/P के पावर कर देंगे तो इट इज माइनस E/kT, ठीक है। ओके, सो देखिए P ऑब्वियसली लेस देन 1 है। मैंने इसको, अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको रिवर्स क्यों किया, मैंने इसको रिवर्स इसलिए किया है क्योंकि जो P का वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, क्योंकि पार्टिकल की जो हिट करने का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। अब इसमें आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेक लॉग, राइट, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो क्या बनेगा, log Ni इज इक्वल्स टू log N। आपको लॉग तो लेना आता ही होगा कि अगर दो चीज़ों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और लॉग लेंगे तो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो प्लस प्लस क्या बनेगा ये आपका ब्रैकेट में माइनस E/kT इंटू लॉग 1/P, राइट, ये बनेगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि जो log Ni है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस E/kT, राइट। सो ये आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, log Ni इज इक्वल टू माइनस E/kT, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का जो मॉडल है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे, आज के लेक्चर में आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनर्जी बैंड मॉडल की बात करूंगा, किस तरीके से एनर्जी में बॉन्ड मॉडल में जो आपका एटम होता है उसमें आपकी स्टेट्स होती हैं, वो स्टेट्स आपस में करीब आती हैं, किस तरीके से आपका वैलेंस बॉन्ड या कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड बनता है, ठीक है, क्या उसका ट्रांजिशन बैंड होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, किस तरीके से जो एनर्जी का है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वी विल टॉक दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। I hope you enjoyed the video. Thank you. Please share this video so that maximum people can reap the benefits of it.